Now let's discuss with next example 33. A bob of mass m is suspended by a light string of length l. तो मेरे पास एक बॉब है, I am having a bob, okay, of mass small m, and it is suspended by a light string having length of how much l. It is imparted a horizontal velocity. It is imparted a which kind of a velocity? Horizontal velocity of how much? So it has been imparted as horizontal velocity v naught at a lowest most point. अभी at a lowest most point मतलब let this be what? Lowest most point. Lowest most point. Let that point be suppose A, such that it completes a semicircle trajectory in the vertical plane. तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा. मतलब ये अगर इसका सेंटर है तो इट इज गोइंग टू मूव इन अ vertical plane. Clear or not? So it is going to move in which kind of a plane? It is going to move in a vertical plane. Okay. Now the statement has been complete a semicircle trajectory in a vertical plane with the string becoming slack. Word क्या यूज किया? Slack. Only on reaching the topmost position. जब वो उसके टॉपमोस्ट पोजिशन पे रीच करेगा तो उसकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्लैक. ऑन रीचिंग द पॉइंट सी. तो सपोज वो पॉइंट सी पे पहुंचा. लेट दिस पॉइंट बी सी एंड लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? ए. तो द ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड एट विच पॉइंट? एट दिस पॉइंट, टॉपमोस्ट पॉइंट. तो उन्होंने क्या कंप्लीट किया? सेमी सर्कुलर कंप्लीट किया. Let this be what? Center O, and let this string having a length of how much? L. Understood? Now this is shown as in the figure. Obtain an expression for V naught. Obtain an expression for which naught? V naught. The speed at B and C. अभी B and C कौन सी point है? तो they have mentioned this point as B. Another point which I have told you here, topmost point is what? C. तो दोनों भी जगह आपको फाइंड आउट करना है. लेट द स्पीड एट बी बी वॉट? वी बी. एंड लेट द स्पीड एट सी बी विच वन? वी सी. एंड एट द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट दिया है दैट इज वी ए विच इज दे हैव मेंशन एज वी नॉट. द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दैट इज के बी बाई के सी. ओके. Now comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaches which point? C. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. Now according to the condition, आपके पास दो पोजीशन है. Since you are discussing, it can be solved with the help of work energy power. Yes or no? In chapter number 6. So I can say that whenever the object is at this point, it will be having energy at A, and when it reaches at this point, it will be having energy at C. Since according to the law of conservation of mechanical energy, energy can neither be created nor destroyed, it can be converted from one form to the another. So whether I can say that the energy at A will be equal to the energy at C. Now since energy का दूसरा फॉर्म होता है E is equal to which value? K plus U. तो whether I can say Ka plus UA, that is kinetic energy plus potential energy at A. Same way kinetic energy at C plus potential energy at C. Got it? I will mark this as equation
1. Now since kinetic energy at A can be written as half m va square plus, since if I consider reference level, अगर ये आपका क्या हुआ रेफरेंस लेवल हुआ, तो व्हाट कैन आई से अबाउट एच ए, हाइट एट ए, वेदर इट इज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, द आंसर इज यस. तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन whether I can say mgha is equal to half mvc square plus mghc. Now since ha can be considered as 0 and hc can be considered, since it is at a height this one, hc is this one, so whether I can say it is twice of L or not, the answer is yes. क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ L और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हुआ L, तो whether I can say twice of L or not, तो आंसर इज yes. तो हाइट एट C एंड हाइट एट मुझे A मिला. सो whether I can substitute this value, half m va square is equal to half m vc square plus mg twice of L. नाउ सब में कॉमन क्या निकलेगा, m एंड m विल गेट कैंसल, सो हाफ va स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ vc स्क्वायर प्लस ट्वाइस gl, इक्वेशन नंबर 2. होप सो यहाँ तक समझ में आया. क्लियर. नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट, va की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. नाउ दिस va ऑलरेडी दे हैव मेंशन एज विच वैल्यू, v नॉट. Yes or no? तो instead of VA you can write here as nothing other than dash V naught, क्योंकि given condition है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, since VA instead of VA according to the numerical I can write V naught at its lowest most point. Yes. Okay. Now but obviously when it is at lowest most point, ये point पे है, तो whether I can prepare FBD. तो देखो FBD किस तरह प्रिपेयर होता है. वेट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इक्वल टू विच वैल्यू mg. यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा, टेंशन. नाउ सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग UCM, अगर आप देखोगे रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर से मुझे FBD क्या मिलता है. तो वेदर आई कैन से FBD इज गिवन बाय वेट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिंस देयर इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग प्रोड्यूस अ व्हाट, टेंशन. ये इसका ओरिजिन एंड द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग डैश रोटेशनल मोशन. तो इफ यू रिमेंबर एवर वी हैव डिस्कस दैट फॉर UCM व्हाट इज कंपल्सरी, दैट इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ट्रू और फॉल्स? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज कंपल्सरी. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटन एज mv स्क्वायर बाय r. ये इसका जनरल फॉर्मूला है. अभी यहाँ पे this can be considered as positive and this can be considered as negative. So who is going to provide necessary centripetal force in this situation? So I can write plus t minus which value, mg. आप बोलोगे सर ऊपर पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ व्हाट, सेंटर. इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ व्हाट, सेंटर. इसलिए सेंटर की तरफ टेंशन क्या है, पॉजिटिव. उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव. सो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट होल पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन राइट एम वी स्क्वायर बाय, now this r will be replaced by which value, length of the wire. Yes or no? Yes. ये आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है. ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो r के बदले क्या लिखूंगा, l. यहाँ पे स्पीड कौन सा है, va मतलब v नॉट. यस और नो? यहाँ पे जैसे कहा आपने कि यहाँ पे स्पीड क्या डेवलप होता है, v नॉट. तो यहाँ पे मैंने v नॉट लिखा विच इज इक्वल टू टेंशन t माइनस mg. एग्जैक्टली. अब ये टेंशन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एट पॉइंट ए. तो लेट द टेंशन प्रोड्यूस बी व्हाट, TA. तो यहाँ पे टेंशन इज एट लोएस्ट मोस्ट पोजीशन दैट इज A. इसके लिए मैंने यहाँ पे टेंशन TA लिखा. क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन? श्योर? ओके. नाउ सो आउटकम ऑफ द रिजल्ट मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा. सिमिलरली आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन सपोज 3. अभी चेक करो, मुझे जो आउटकम ऑफ द आंसर चाहिए दैट इज इन ऊपर. मुझे यहाँ पे विच टर्म चाहिए,
मुझे लाइक टर्म में चाहिए, तो आंसर कम आउट शुड बी इन जी। ये वी सी के टर्म्स में मुझे सब्सटीट्यूट करना है, बट मेरे पास तो क्या है, वी नॉट है। तो वंस अगेन आई विल गो टू वॉट, एफ बी डी एट द पॉइंट सी, एट दिस पॉइंट। तो एट द पॉइंट सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या एक्ट होगा, वेट एक्ट होगा, वेट इक्वल टू विच वैल्यू, एम जी। नाउ द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्लैक मतलब वहाँ पे टेंशन कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वंस अगेन ये मैंने एफ बी डी कहाँ पर प्रिपेयर किया, at point A. Similarly, the FBD can be prepared at which point? At point C. तो चलो at point C बना रहा हूँ। तो weight will be acting in which direction? Downward direction. Yes or no? टेंशन कुछ नहीं होगा, बिकॉज टेंशन नेग्लिजिबल कंसिडर करना है, दैट इज ज़ीरो, क्योंकि इट इज़ टू डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। और हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? तो यर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू विच वैल्यू, वेट। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी सी स्क्वायर बाय लेंथ कितना आएगा, वंस अगेन एल, विच इज इक्वल टू विच वैल्यू, एम जी। गॉट इट? सो देयरफॉर वी सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस एम एंड दिस एम गेट कैंसल, तो मुझे क्या मिलेगा, जी एल। सो therefore VC is equal to under root of which value, GL। length of the wire कितना है, suppose L। तो I have got speed at which value, C। I will mark this as equation suppose 4। understood? अभी back to this point, whether in this situation VC square can be substituted or not? तो answer is but obvious, yes। तो अगर ये वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन विच वन, 2, इन इक्वेशन विच वन, 2, तो मुझे मिलेगा हाफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, आई कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, जी एल प्लस ट्वाइस ऑफ जी एल, ट्वाइस ऑफ विच वैल्यू, जी एल। सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 जी एल बाई 2, यहाँ पे मिलेगा मुझे हाफ वी नॉट स्क्वायर। नाउ विच वैल्यू विल गेट कैंसल, 2 will get cancel। So ultimately final outcome of the result, V naught is equal to under root of 5 GL। got it or not? So this is nothing other than speed at its lowermost point, which I have find it out as dash under root of which value, GL। I will mark this as equation number 5। So whether I have got one answer, in finding in such condition I have find out speed at which value, C। speed at C कितना दिया है, तो whether I can say under root of GL, तो speed भी मिल गया मुझे। Similarly मुझे और कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो आई हैव फाइंड इट आउट 2 कंडीशन, एक ये वैल्यू फाइंड आउट किया, एक ये वैल्यू फाइंड आउट किया। अभी भी मेरे पास कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करने की बाकी है, VB। मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रीच करेगा तो इसकी यहाँ पे स्पीड जो होगी दैट विल बी नथिंग अदर देन VB। तो जैसे आपने EA फाइंड आउट किया है यहाँ पे, वैसे ही मैं EB लिख सकता हूँ, येस और नो। तो सिमिलर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mechanical energy, I can state that EA will be equal to dash EB। Now from that point of view I can say kinetic energy at A plus potential energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B। that means half mVA square plus mgHA is equal to half mVB square plus mgHB। Now since as I know कि HA की वैल्यू क्या है, 0, VA can be written as V naught। apart from that what can I write about HB? तो चलो न्यूमेरिकल के बोर्ड इस पे चले जाओ, फिगर पे। फ्रॉम दिस होल पॉइंट ऑफ व्यू whether I can say that यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट क्या होगी, H of B, whether it can be written as L or not? आंसर इज yes। सो वही वैल्यू को मैं यहाँ पे L लिख सकता हूँ। got it or not? तो substituting this whole value, half m V naught square
is equal to half mvb square प्लस mgl. नाउ इसमें से m कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, सो मुझे मिलेगा हाफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर प्लस जी एल. इक्वेशन नंबर सपोज 6. इक्वेशन नंबर 6. वेदर आई नो वी नॉट या वी ए की वैल्यू पता है तो आंसर इज यस, अंडर रूट ऑफ 5gl. तो वेदर आई कैन से वी नॉट स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5gl. कैपिटल एल लिखो, स्मॉल एल लिखो. इक्वेशन नंबर 7. वेदर दिस 7 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन नंबर 6 और नॉट. तो हाफ 5gl is equal to half vb square plus gl. So ultimately from that point of view, half vb square is equal to half 5gl minus gl. So ultimately 2 ones are 2, so 5 minus 2 3. So whether I am going to get 3gl by 2, here it will be half vb square. So whether this half and this half will get cancelled, yes. So मुझे क्या मिलेगा, vb square is equal to 3gl. That means vb is equal to under root of 3gl. Whether I got the speed at b or not, answer is yes. Got it? Now उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है, that is the ratio of kb by kc. Yes or no? Now that is nothing other than half m vb square plus upon half m vc square. Which value will get cancelled? Half m will get cancelled. So vb square can be written as 3gl and vc can be written as under gl, can be written as what? gl. Which value will get cancelled? gl get cancelled. So whether I am going to get the ratio as 3:1, true or false? True. Is that clear? So whether I can say that the ratio of kb is to kc is nothing other than 3:1. So the final answer, whether I have got the answer or not. Three is to 1. Clear everyone? Any doubt? Sure. Now let's deal with the next example. 37. The potential energy of a spring when stretched through a distance x is 10 joule. So it has been said that the potential energy is 10 joule when the spring has been pulled by a distance of how much x. What is the amount of work done on the same spring? On the which kind of a spring? It has been mentioned same spring if it is stretched to an additional distance of x. उन्होंने mention किया है कि what is the amount of work done on the same spring to stretch it through an additional distance x. अभी additional distance x का मतलब क्या हुआ? मतलब x plus x, it will give you which value? 2x. अभी क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन. Now you should remember, according to work energy theorem, where the work done is equal to change in kinetic energy, and according to law of conservation of mechanical energy, whether I can say change in kinetic energy plus change in potential energy is equated to which value? 0. So therefore change in kinetic energy can be written as negative of change in potential energy. Mark this as equation 1, mark this as equation number 2.
whether 2 can be substituted in equation number 1, तो answer is yes. Work done is equal to negative of change in potential energy. Now what is change in potential energy can be written as final potential energy minus initial potential energy, which can be written as dash minus UF plus UI. So which can be written as work done is equal to initial potential energy minus final potential energy, equation number 3. This is one of the important, ये मैंने डेरिवेशन भी यहाँ पे करवा दी है आपको, सो दैट यू कैन गेट कि यहाँ पे जो भी वर्क डन होता है इट इज़ नॉट ओनली जस्ट with respect to kinetic energy, change in kinetic energy, but it is with respect to what potential energy also. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे प्लस होती है वर्क डन में, बट जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए विथ वर्क डन इट इज़ नेगेटिव. वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वर्क डन जो भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट द सेम वर्क डन विल बी नेगेटिव विद द पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सो नॉर्मली जब भी हम जनरल इक्वेशंस लिखेंगे तो हमें ये बात याद रखनी है कि वर्क डन विल बी ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? अभी मेरे पास दो केसेस हैं यहाँ पे. एक तो उसको पुल किया है फर्स्ट केस में, तो ये आपका इनिशियल हुआ, और ये जो भी हमने ट्वाइस ऑफ x2 लिखा वो आपका क्या हुआ, फाइनल. क्लियर? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट केस हम फाइंड आउट करते हैं. Initial potential energy can be written as half k xi square. Okay, now from that point of view it has been given initial कितना है 10 is equal to half k x square. Okay, now since they have mentioned in this numerical that we are making the use of same spring मतलब k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है इन बोथ द केसेस, मतलब k वैल्यू विल बी द सेम. सो इसमें से मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ 20 by which value x square, equation number suppose 4. Got it? Second case में the spring has been stretched, तो final potential energy can be written as half k f square. So this give rise to dash half k के बदले क्या लिख सकता हूँ 20 by x square into this can be written as twice of x the whole square. Now this half into 20 by x square into 4 x square. So ultimately 2 2s are 4, x square will get cancelled. So ultimately the final potential energy that I am going to get is 40. Is that clear or not? कितना मिलेगा मुझे 40 जूल. अभी what I have got initial, whether initial has been mentioned as 10 joule or not, तो answer is yes. तो making the use of both this initial and final, so whether I can find out work done. What is the formula for work done? Work done is equal to initial minus final. चेक करो कि yes, initial minus क्या आएगा, final. So from that point of view what can I say, initial कितना हुआ 10 minus 40, that is equal to, here it comes out to be negative, कितना मिलेगा मुझे -30 जूल. माइनस क्या मिलेगा मुझे 30 जूल. बट सिंस वर्क इज अ विच काइंड ऑफ अ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ इज डन इज दैट इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर और नॉट? तो इसका अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो वर्क डन विल बी नथिंग अदर देन हाउ मच जूल, 30 joule. This will be your final answer. Clear? Now बहुत जन के दिमाग में ना एक confusion होगा कि सर यहाँ पे आंसर हमें जो मिला वो नेगेटिव है और आपने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा, आया ना दिमाग में? ओके, अभी मैं आपको ये बात समझाता हूँ. ये जो भी वर्क डन हुआ इट इज़ बाय द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. ओके, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखो. Whether in question it has been asked to you what is the amount of work done. यहाँ पे मैंने ये जो भी वर्क डन किया it is stored, और ये जो भी वर्क डन हुआ it is by the spring, it is by the what, spring, that is nothing other than force exerted by the what, spring. But क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन. इज दैट क्लियर? क्या फाइंड आउट किया है, अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग, ऑन द work done on
द सेम स्प्रिंग। अभी वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग मतलब जो भी वर्क डन होगा ऑन द सेम स्प्रिंग वेदर इट विल बी बाय द एक्सटर्नल फोर्स और नॉट, तो आंसर इज यस। अभी एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है दैट इज म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज इन विच डायरेक्शन, म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड उसको स्प्रिंग से मैंने कनेक्ट किया, इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, ओके। नाउ अभी यही ब्लॉक को मैंने खींचा, आई अप्लाइड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड। तो बट ऑब्वियस है इसमें ये जो भी अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा दैट विल बी फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। तो हमने पहले ये फाइंड आउट किया अकॉर्डिंग टू द जनरल केस, मैंने वर्क डन फाइंड आउट किया बाय द स्प्रिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट इज नथिंग अदर देन, उसमें फोर्स क्या मैंने कंसिडर किया, एफ एस। क्वेश्चन में पूछा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द स्प्रिंग मतलब बाय द एक्सटर्नल फोर्स। भाई बताओ मुझे, दोनों भी अपोजिट इन डायरेक्शन है फोर्स, और वर्क डन का रिलेशन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आप लिखते हो। यहाँ पे अगर आप ये एफ बी डी बनाते हो तो यहाँ पे एफ बी डी भी नहीं भी बनाते हो तो एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ वॉट, स्प्रिंग फोर्स, बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके लिए यहाँ पे जो माइनस साइन है वो यहाँ पे प्लस हो गया। गॉट इट और नॉट? तो आप अगर किसी ने ये पूछा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स that is on the exerted on the same spring, so work done can be written as final minus initial, but this is the amount of work done by the external agency, by the which agency, external agency। but जब spring की बात आती है तो हम work done जो भी calculate करते हैं that is by the spring, इसलिए उसमें हमेशा फॉर्मूला होता है इनिशियल माइनस फाइनल, एंड इफ द एक्सटर्नल वर्क इज डन देन फाइनल माइनस इनिशियल भी आप कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट आंसर इससे आएगा, या तो मोर टू बी प्रिसाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल कि यहाँ पे जो भी वर्क डन हो रहा है, इज दैट क्लियर? तो पहले मैंने केस फाइंड आउट किया वर्क डन विद द हेल्प ऑफ डैश पुट स्प्रिंग एंड वर्क डन ऑन द स्प्रिंग बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, is that it will be opposite in direction, तो minus of minus क्या हो जाएगा, plus, and this will be your final answer. Hope so I have made very clear my points regarding this. Normally students get confused कि सर ये फॉर्मूला कभी हम ये यूटिलाइज करते, कभी कभी ये फॉर्मूला यूटिलाइज करते। तो मैंने बता दिया कि ये वर्क डन जो है इट इज़ डन बाय द वॉट, एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो भी वर्क डन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दैट इज बाय द वॉट, एक्सर्टेड इन द वॉट, स्प्रिंग। क्लियर? Any doubt? Now let's deal with the next example. 38 and 39 दोनों भी चैप्टर कंबाइन है, दोनों भी न्यूमेरिकल एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सबसे पहले 38 करते हैं। टू स्टिमुलेट द कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार विद द माउंटेड स्प्रिंग। आपने बहुत सारी एड्स देखी होगी, ओके उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह का यहाँ पे आपके पास एक व्हीकल होती है जो डैश करती है इसमें, इट मूव्स टूवर्ड्स इट एंड इट कोलॉइड, ट्रू और फॉल्स। तो वही एग्जांपल इससे रिलेटेड दिया हुआ है। Now it has been given to stimulate the car accident, auto manufacturers study the collision of moving car with the mounted spring of different spring constant. Of which kind of a constant? Different spring constant मतलब let it be which value, suppose K1, K2, K3. Clear? Consider a typical stimulation with a mass of car. Mass of car has been given as 1000 kg, that is 10 to the power 3 kg, moving with the speed of 18 kilometer per hour, that means 18 into 5 by 18, so it comes out to be which value, 5 meter per second on a smooth road and collide with the horizontal mount spring constant. Here the spring constant has been given as, let it be which value, K, and K value has been given to you as 6.25 into 10 to the power 3 Newton meter inverse. What is the maximum
compression of the spring, आपको maximum compression of the spring find out करना है in this situation. Clear? तो बट ऑब्वियस है व्हेन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग टेक्स प्लेस, मतलब ये कंडीशन में जब इसको ये बैंग करेगा तो मैक्सिमम जब कंप्रेस करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वेदर इट विल गेट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू इट्स डैश पोटेंशियल एनर्जी. तो आपको दो डायग्राम दे रहा हूं मैं, अच्छी तरह से देखो. एक कार है आपकी, दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ हाउ मच v. एट दैट टाइम इट पोजेस व्हाट काइनेटिक एनर्जी. व्हेन इट गेट कंप्रेस्ड कंप्लीटली, वो स्प्रिंग को कभी कंप्लीट क्या कर देगा, वो कंप्रेस्ड कर देगा. तब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे हुआ, लेट इट बी विच वैल्यू xm. ओके, तो इसके ऊपर से मैं ये बोल सकता हूँ ये आपका इनिशियल कंडीशन है एंड दिस इज योर व्हाट फाइनल कंडीशन. Now initial condition में whether I can say that same way law of conservation of mechanical energy, that is initial मतलब EI equal to EF बोल सकता हूँ, that is KI plus UI is equal to KF plus UF. Now tell me what will be the initial potential energy in a stored spring? It will be zero because spring compressed ही नहीं हुआ है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, तो इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v, तो v स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी केस में क्या है, जीरो बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा आपको, हाफ k xm स्क्वायर. गॉट इट एवरीवन, सिंपल. सो इनिशियल कैन बी रिटन एज हाफ m v I स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो. श्योर, यस, बट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, हाफ k xm स्क्वायर. गॉट इट और नॉट, कोई डाउट? श्योर. सो अल्टीमेटली वेदर आई कैन से दिस इज हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k xm स्क्वायर. Now they have told you to find it out dash xm square. This 2 and this 2 will get cancel. So मुझे outcome of the result mv square by k. Whether I know all the values, answer is yes. तो k xm square is equal to 10 to the power 3 into 5 square the whole upon 6.25. 6.25 into 10 to the power 3. Yes or no? Yes. So whether I can say this 10 to the power 3, 10 to the power 3 get cancel? Yes. अभी इसमें मुझे क्या मिलेगा, 5 into 5 625 into 10 to the power 2. Yes or no? Please calculate and find out the answer. तो आपको मिलेगा xm square to be which value 4. That means xm is equal to how much, 2 meter. This will be your answer for 38. Got it? Now continue with the 39. It has been given, consider same example as above, taking the coefficient mu as 0.5 and calculate the maximum compression. Same thing. and इसमें पहले केस में क्या दिया था, स्मूथ दिया था, मतलब फ्रिक्शन नहीं था. अभी सेकेंड केस में क्या दिया है, फ्रिक्शन दिया है. ये मूव करेगा. सेम एग्जांपल, कोई डिफरेंस नहीं, बट सिर्फ इसमें एक एडिशनल है कि फ्रिक्शन, टायर क्या एग्जर्ट करेगा, फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा. दिस विल बी योर इनिशियल, दिस विल बी योर व्हाट, फाइनल. इज दैट क्लियर? सिंस इन दिस केस सरफेस इज विच काइंड ऑफ अ सरफेस, रफ सरफेस, जबकि फर्स्ट केस में क्या दिया था, स्मूथ सरफेस सपोज. तो यहाँ पे फ्रिक्शन देने की वजह से पता चला कि यहाँ पे रफ सरफेस है. तो बट ऑब्वियस है, यू हैव टू मेक द यूज ऑफ सर्टेन कंडीशंस. ओके, और मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है.
लेट इट बी विच वैल्यू XM। ओके, ये नेक्स्ट केस है, तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं इसको, FBD बनाना पड़ेगा। FBD में सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वेट विल बी एक्टिंग इन डैश डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, perpendicular to the surface on which the object lie is normal. Yes or no? Yes. Clear? Second important point, यहाँ पे वर्क डन होगा। Yes. अभी वर्क डन कौन से बेस पे होगा, तो ये भी हमें सोचना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉर्मूला यूज करूंगा, वर्क एनर्जी थियरम। What is work energy theorem? Work done is equal to change in kinetic energy. Yes or no? Work done is equal to which value? Change in kinetic energy. अभी जब वो compressed हो रहा है तो what are the things that is going to happen? तो देखो change in kinetic energy क्या मिलेगा, तो change in kinetic energy is nothing other than final minus initial. Final क्या मिलेगा आपको? Whether I can write final to be 0? Yes, previous case में हमने पढ़ाई है, और half mv square. So change in kinetic energy that I am going to get is nothing other than half mv square. This is your equation number 1 and this is as equation number 2. Now मुझे change in kinetic energy मिल गया एक केस में, आंसर इज yes. Okay, now मुझे work done find out करना है, तो whether I can say work done by the two opposing forces। अभी टू अपोजिंग फोर्सेस कौन से हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। यस और नो? आंसर इज यस। अभी वर्क डन बाय द स्प्रिंग विच इज़ कम्प्लीटली स्टोर्ड, बिकॉज ये रेस्ट पे है, तो जब भी वर्क डन होगा एंड इट इज़ गेट कम्प्लीटली कॉम्प्रेस्ड, तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग और नॉट, दैट इज नथिंग अदर देन माइनस हाफ k xm square. Is that clear? Because the work is done by the spring. Is that clear? And it is getting completely converted into its potential energy. तो जो भी amount of work done हुआ that is getting converted into potential energy, और potential energy of a stored spring का क्या है, half minus half k xm square. Got it? Now work done by the frictional force अगर आप देखोगे तो it is nothing other than in this direction. इसमें भी स्प्रिंग में स्टोर हुआ वो भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन बाय द स्प्रिंग, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग अदर देन म्यू एन। लिख सकता हूँ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा आएगा, समझ में आ रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सएम। अभी यहाँ पे FBD प्रिपेयर करता हूँ, तो वेट विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट नॉर्मल। यस और नो? ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू एन लिख सकता हूँ। नाउ सिंस वेदर आई कैन राइट एन इक्वल टू विच वैल्यू, mg along y direction, yes or no? Answer is yes. So from that point of view, minus half k xm square minus f के बदले क्या लिख सकता हूँ, mu n xm. Is that clear? Now this can be written as minus half k xm square minus mu n के बदले whether I can write mg xm, that is the work done. Equation number, let it be which one, 3. Now substituting 2 and 3, substituting 2 and 3 in equation number 1, that is nothing other than work done is equal to change in kinetic energy, that is half k xm square minus mu mg xm is equal to minus half mv square. देखो this value and this value, whether I can substitute here or not. Yes, अभी सब में से माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा मुझे, हाफ के एक्सएम स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्सएम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. गॉट इट. अभी थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर एम प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी एक्स एम माइनस
mv square is equal to which value? 0. Now whether I can compare this equation with a quadratic equation of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by which value? 2a. तो यहाँ पे कंपेयर करूँगा तो x का वैल्यू, ये x स्क्वायर का वैल्यू कौन लिखे जाता है? x स्क्वायर m. यस और नो? कंपेयर करो x टर्म, रिमेनिंग जो होगा दैट विल बी योर कांस्टेंट, दैट इज a विल बी रिप्लेस्ड बाय k, b will be replaced by which value? 2 mu mg, and c will be replaced by minus mv square. Got it or not? ओके या तो फिर उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स. k की वैल्यू इट हैज़ बीन गिवन एज 6.25 इंटू 10 to the power 3 xm square, that will be better, plus 2 into 0.5 into 10 to the power 3 into acceleration due to gravity 10 कंसिडर करो, xm माइनस 10 to the power 3 और स्पीड कितनी थी? 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वेटेड टू विच वैल्यू? 0. यस और नो? ओके, अभी ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसमें से 10 to the power 3 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 6.25 एक्स स्क्वायर एम प्लस 1 और ये 10, तो आई एम गोइंग टू गेट 10 xm minus 25 is equated to which value? 0. अभी इसमें से मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ? 5. सो सॉलिड, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. फाइनल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ. ओके, दैट इज नथिंग अदर देन योर फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी 10 to the power 3, 10 to the power 3 कॉमन निकल जाएगा, इट विल गो दैट साइड, मतलब वो 0 हो जाएगा. यहाँ पे 10 इंटू 5 50, 50 इंटू मतलब 1 2, यहाँ पे 2 मुझे मिलेगा. सो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 5xm स्क्वायर प्लस 8xm minus 20 is equated to 0. So whether I can compare this equation directly with this equation? Answer is yes. So instead of this value you can directly straight away substitute A as 5, B as 8 and C as what? Minus 20. Clear everyone? Okay, now substitute and find out. तो आपको मिलेगा xm is equal to minus 8 plus or minus under root of b square, 8 are 64 प्लस यहाँ पे माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 20 इंटू 20 400 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? 400 द होल अपॉन 10. तो सॉल्व करो तो यू विल बी गेटिंग, सिंस xm इज अ डिस्प्लेसमेंट तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? पॉजिटिव. इज दैट? तो पॉजिटिव है तो xm कैन बी रिटन एज डैश माइनस 8 प्लस 21.54 द होल. इसको सॉल्व करो. ओके, डिवाइड बाय 10, तो मैक्सिमम कंप्रेस्ड विल बी 1.354 मीटर. तो वेदर आई कैन से व्हेन इट इज अ रफ सरफेस फ्रिक्शन इज एक्टिंग, तो इसका कंपैरिजन आप स्मूथ के साथ में कंसीडर करो. स्मूथ के साथ में आपने जो सॉल्व किया था दैट वाज 2 मीटर. इज दैट द स्प्रिंग विल कैन compressed by 2 meter, but due to the frictional force, is that clear, which is acting in opposite direction to the motion, उसके वजह से compressed कितना होगा स्प्रिंग? 1.354. अंडरस्टूड?